بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 جولائی 2022 پاکستان سمیت عرب دنیا کے تازہ ترین خبرنامے کے ساتھ میں ہوں محمد ابو ذر۔ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ اس سے پہلے ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پیج پر سن رہے ہیں تو فالو کرنا نہ بھولیں۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے ساتھ NA 245 کراچی کا ضمنی الیکشن بھی ملتوی کر دیا گیا۔ خیال رہے کہ NA 245 کی نشست PTI کے MNA عامر لیاقت کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق NA 245 کراچی کا ضمنی انتخابات اب 21 اگست 2022 کو ہوگا۔ دوسری جانب سندھ میں 24 جولائی کو ہونے والے دوسرے مرحلے کا بلدیاتی انتخابات بھی ملتوی کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ اب 28 اگست 2022 کو ہوگا۔ ذرائع کے مطابق کراچی میں بارشوں کی پیشن گوئی کے باعث انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ یہ فیصلہ متحدہ قومی موومنٹ چیف سیکرٹری GDA اور صوبائی الیکشن کمیشن کی درخواست پر کیا گیا۔ بھارتی روپیہ بھی ڈالر کے مقابلے میں گراوٹ کا شکار۔ ڈالر کے مقابلے میں بھارتی روپیے کی قدر میں بھی کمی کا سلسلہ جاری۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا اور ڈالر کے مقابلے میں بھارتی روپیے کی قدر میں 7% کمی ہوئی۔ بھارت میں ڈالر 80 روپے کا ہو گیا۔ بھارتی روپیے پر تجارتی خسارے، بیرونی سرمایہ کاری نکلنے اور خام تیل کی قیمتوں کا دباؤ ہے۔ بیرونی سرمایہ کاروں نے سال 2022 میں بھارت سے 14 ارب ڈالر نکالے۔ بھارتی روپیے کی قدر میں کمی کا سبب بیرونی سرمایہ کاری کا اخراج ہے، جبکہ جون میں بھارت کا تجارتی خسارہ 26 ارب اور مئی میں 24 ارب ڈالر رہا۔ خیال رہے کہ دسمبر 2014 میں بھارتی روپیے کی قدر میں 25% کمی ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں بھی روپیے کی قدر میں کمی اور ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور ڈالر 224 روپے 92 پیسے کا ہو گیا۔ کہکے لگانے والے یاد رکھیں، ان قریب ان کی چیخیں آسمان تک جائیں گی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ یہ کہکے لگانے والے یاد رکھیں، ان قریب ان کی چیخیں آسمانوں تک جائیں گی۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ سیاسی عدم استحکام معاشی قیامت کو جنم دے رہا ہے۔ ڈالر 226 کا ہونے کے باوجود IMF سے بیل آؤٹ معاہدہ طے نہیں پایا۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اکتوبر نومبر میں عام انتخابات کے علاوہ کوئی حل نہیں، پھر کوئی بھی حکومت نہیں کر پائے گا۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ اوورسیز ووٹوں کے لیے میں ابھی سپریم کورٹ جا رہا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کہہ کے لگانے والے یاد رکھیں کہ ان قریب ان کی چیخیں آسمانوں تک جائیں گی، لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اور ان کے گریبان ہوں گے، بس وقت کا انتظار کریں۔ نورپور شرما کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے والے پاکستانی شہری کی گرفتاری کا دعویٰ۔ انڈین پولیس نے راجستھان سے 24 برس کے ایک پاکستانی شہری کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا، جس نے بھارتی جنتا پارٹی کے سابقہ ترجمان نورپور شرما کو قتل کرنے کا مبینہ منصوبہ بنایا تھا۔ انڈین اخبار ہندوستان ٹائم کے مطابق پولیس افسر نے کہا کہ پاکستانی شہری کو بارڈر سیکورٹی فورس نے 16 اور 17 جولائی کی درمیانی رات سرحدی چوکی ہندو مالکوٹ سے گرفتار کیا تھا۔ سرحد پر پیٹرولنگ ٹیم نے جب پاکستانی شہری کو مشکوک پایا تو اس کو فوری طور پر حراست میں لیا اور تلاشی لی۔ پولیس افسر نے مزید کہا کہ ملزم کے بیگ میں 11 انچ کی چھری، مذہبی کتابیں، کپڑے اور خوراک تھی۔ اس نے اپنی شناخت رضوان اشرف ولد محمد اشرف کے نام سے کرائی، جو منڈی بہاؤدین کا رہنے والا ہے۔ بارڈر سیکورٹی فورس کے ایک سینئر افسر نے NDTV کو بتایا کہ ابتدائی تفتیش کے دوران مشتبہ شخص نے بتایا کہ اس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف متنازع بیان دینے والی نورپور شرما کو قتل کرنے کے لیے سرحد پار کی۔ اس نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد سے پہلے اجمیر درگاہ کے دورے کا منصوبہ بھی بنایا تھا۔ ان کے مطابق مزید تفتیش کے لیے پاکستانی شہری کو مقامی پولیس کے حوالے کیا گیا۔ اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، جس نے 8 دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا۔ مشرقی وسطی کی سب سے بڑی جھیل خشک ہونے پر ایران میں مظاہرے شروع۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران میں موجود مشرقی وسطی کی سب سے بڑی سمجھی جانے والی جھیل کے خشک ہونے پر احتجاج کرنے والے متعدد افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ایران کی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ مظاہرین جھیل کے خشک ہونے پر احتجاج کرتے ہوئے سیکورٹی میں خلل ڈالنے کا سبب بن رہے تھے۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کے مطابق شمال مغربی ایران کے پہاڑوں میں واقع ارمیا جھیل طویل خشک سالی کے باعث علاقے میں کھیتی باڑی اور ڈیموں کے لیے پانی نہ نکلنے کی وجہ سے سن 1995 میں شروع کی گئی تھی۔ اس جھیل کے ارد گرد ساحلوں پر تقریباً 60 لاکھ سے زیادہ افراد زراعت پر انحصار کرتے ہیں۔ ایران کے مغربی صوبے کی پولیس چیف کا کہنا ہے کہ گرفتار شدگان دشمن عناصر کے طور پر شر پھیلانے والے افراد ہیں، جن کا مقصد عوام کی سلامتی کو درہم برہم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔
मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने सूबाई दारुल हुकूमत में एहतजाज करते हुए नारे लगाए, अर्मिया झील प्यासी है, झील सुकड़ रही है, झील मर रही है और हुकाम ने इसे मारने का हुक्म दिया। ईरान में दरियाओं के खुश्क होने, खासतौर पर वस्ती और जनूबी मगरबी ईरान में हज़ारों अफराद ने गुज़श्ता चंद महीनों में मुतअद्दिद मुज़ाहरे किए। 3 एशियाई ममालिक दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट के मालिक बन गए। दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट का एजाज़ 3 एशियाई ममालिक को हासिल हो गया। पासपोर्ट की दर्जबंदी जारी करने वाले इदारे ने 2022 की तीसरी माही के लिए ताकतवर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त जारी की। इस फहरिस्त के मुताबिक जापानी पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर है, जिसको रखने वाले अफराद वीज़ा लिए बगैर 193 ममालिक का सफ़र कर सकते हैं। सिंगापुर और जनूबी कोरिया मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर हैं और वहाँ के शहरियों को 192 ममालिक जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं। नंबर 3 एशियाई ममालिक के बाद यूरोपीय ममालिक ही दर्जबंदी में छाए हुए हैं। फिनलैंड और इटली के पासपोर्ट मुश्तरका तौर पर चौथे नंबर पर रहे, जिनके हामिल अफराद 189 ममालिक का सफ़र वीज़े के बगैर कर सकते हैं। इसी तरह 188 ममालिक के वीज़ा फ्री सफ़र के साथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड और स्वीडन 5वें नंबर पर मौजूद हैं। फ्रांस, आयरलैंड, पुर्तगाल और बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को 187 ममालिक में वीज़े के बगैर सफ़र करने की सहूलत हासिल है और इन ममालिक के पासपोर्ट उस फहरिस्त में 6ठे नंबर पर हैं। बेल्जियम, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के पासपोर्ट पर 186 ममालिक का सफ़र वीज़े के बगैर करना मुमकिन है और ये फहरिस्त में 7वें नंबर पर है। 8वें नंबर पर मुश्तरका तौर पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, यूनान और माल्टा के नाम रहे, जिनके शहरी 185 ममालिक में पासपोर्ट दिखाकर वीज़े के बगैर दाखिल हो सकते हैं। हंगरी का पासपोर्ट 9वें नंबर पर रहा, जबकि 10वें नंबर पर लिथुआनिया और पोलैंड के पासपोर्ट हैं। सबसे कम ममालिक तक वीज़ा फ्री रसाई हासिल करने वाले पासपोर्ट इस फहरिस्त में शामिल है, जिनमें पाकिस्तान कमज़ोर तरीन पासपोर्ट रखने वाला चौथा मुल्क करार पाया, जो 109वें नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 32 ममालिक में वीज़े के बगैर सफ़र किया जा सकता है। पाकिस्तान से नीचे शाम 110वें नंबर पर, इराक 111वें नंबर पर और अफगानिस्तान 112वें नंबर पर मौजूद है। इसके मुकाबले में यमन 108वें, सोमालिया 107, नेपाल और फ़लस्तीन 106 और शुमाली कोरिया 105वें नंबर पर पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर पासपोर्ट करार पाया। रूस ने यूक्रेन के मज़ीद हिस्सों को हथियाने का मंसूबा तैयार कर लिया। अमेरिका ने दावा किया कि रूस ने क्रीमिया की तरह यूक्रेन के मज़ीद हिस्सों पर कब्जा करने का मंसूबा तैयार कर लिया। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान ने इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि रूस यूक्रेन के मज़ीद हिस्सों को अपने साथ मिलाने के लिए होमवर्क मुकम्मल कर चुका है। तालिबान दौर में सिक्योरिटी बेहतर, लेकिन इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी में इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़ग़ानिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल से मुतल्लिक़ कहा कि तालिबान की हुकूमत में आने के बाद से सिक्योरिटी में बेहतरी आई, लेकिन इस दौरान सैकड़ों अफराद भी हलाक हुए। खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के अफ़ग़ानिस्तान में इमदादी मिशन यूनामा ने बुध को शाया होने वाली रिपोर्ट में अफ़ग़ान ख़वातीन और बच्चों को दरपेश मुश्किल हालात को भी उजागर किया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद किस तरह से ख़वातीन और बच्चों को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम किया गया। अफ़ग़ानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी ने कहा कि हमारी मॉनिटरिंग से ज़ाहिर होता है कि 15 अगस्त के बाद से अगरचे सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी आई, लेकिन अफ़ग़ानिस्तान के अवाम बिलखसूस ख़वातीन और बच्चों को उनके मुकम्मल हकूक़ नहीं दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 में तालिबान के मुल्क पर कब्जे के बाद से 700 अफराद हलाक, जबकि 400 ज़ख्मी हो चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर अफराद कलदम तंजीम दाइश के हमलों का निशाना बने, जो गुज़श्ता 1 साल में स्कूलों, इबादतगाहों और दीगर अवामी मकामात को निशाना बना चुकी है। तालिबान ने हुकूमत में आने के बाद बच्चों की तालीम और ख़वातीन का काम करने पर पाबंदियाँ ऐद कर रखी है, जबकि किसी खातून को अपने भाई या खावंद के बगैर अकेले सफ़र की इजाज़त नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल बंद रखने का मतलब है कि ये 12 सालों में मुश्तमिल बुनियादी तालीम पूरी नहीं कर सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी ने कहा कि ख़वातीन और लड़कियों की तालीम और अवामी सतह पर नुमाइंदगी किसी भी जदीद मुआशरे का बुनियादी पहलू है। ख़वातीन और लड़कियों को घर तक महदूद रखने से अफ़ग़ानिस्तान उन तमाम फ़वाइद से महरूम हो रहा है जो उनकी शमूलियत से हासिल हो सकते हैं। तालीम की सब के लिए फराहमी न सिर्फ बुनियादी हक़ है, बल्कि किसी भी कौम की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तेहरान में मुनक्किद 3 मुल्की सरबराही इजलास में शाम के कुर्दों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों के अपने मौक़िफ़ को जोर देकर दोहराया है।
बावजूद इसके कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसे किसी भी इकदाम के खिलाफ इंतबाह किया था। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बुध के रोज उर्दगान ने रूस और ईरान के रहनुमाओं से कहा कि वो शाम में दहशतगर्दों के खिलाफ इनकरा की लड़ाई में इनकी मुकम्मल हिमायत की तवक्को रखते हैं। 3 मुल्की सरबराही इजलास की मेज़बानी ईरान के सदर इब्राहिम रईस ने की। इजलास में रूस के सदर पुतिन भी शरीक थे। बज़ाहिरन इस सरबराही इजलास का मकसद शाम में 11 साल से ज़्यादा अरसे से जारी तनाज़े को ख़त्म करना था। ईरान और रूस दमिश्क हुकूमत की हिमायत करते हैं, जबकि तुर्की बशर अल असद की हुकूमत के खिलाफ शाम में बागी कुव्वतों की हिमायत करता है। जद्दा में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गैर मुल्की गिरफ्तार। जद्दा पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक गैर मुल्की को हिरासत में लिया। गिरफ्तार शख्स अपने हम वतनों से रकम लेकर इसे गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भिजवाया करता था। मुलज़िम एक कारोबारी इदारे के अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए इसके जरिए से रकमें बाहर भिजवाता था। सऊदी खबरसा एजेंसी ASP के मुताबिक जद्दा पुलिस ने मुकीम मिस्री के गैर कानूनी तरीक़ाकार की तफसीलात बताते हुए कहा कि एक मिस्री ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक यमनी शहरी और एक सऊदी ने इसके 3000 रियाल चोरी कर लिए। पुलिस का कहना है कि हमारे सुराग रसानों ने हकीकत हाल दरियाफ्त करने की कोशिश की तो पता चला कि असल रकम 3.5 लाख रियाल थी। मिस्री ने 3000 रियाल की चोरी की फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये रकम मसरूका नहीं थी बल्कि हुंडी के कारोबार से जुड़ी हुई रकम थी। हकाइक सामने आने पर मुलज़मान को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी अब तक की ताज़ा तरीन कुछ अहम खबरें। मज़ीद इसी तरह पाकिस्तान समेत अरब दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। आप सब दोस्तों के कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।